Hello students, let's continue our chapter Recombinant DNA Technology. We were studying the vectors and had completed the first type of vectors, that is plasmids. In this lecture, we are going to study the second type of vectors, that is bacteriophage. What are actually bacteriophages? Please recall that bacteriophages are the viruses which infect the bacterial cells. These viruses inject their DNA into the bacterial cell, use the bacterial machinery to replicate and to make its own number of copies and propagate through the lytic cycle. RDT में दो तरह के बैक्टीरियोफेजेस को एक्सटेंसिवली यूज किया गया है. These are the lambda bacteriophage. This is a lambda bacteriophage and the M13 bacteriophage जो कि एक filamentous bacteriophage है. We are going to study both these bacteriophages and their applications in RDT in detail. Now the first one, lambda bacteriophage. लैम्डा का जीनोम एक डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए होता है विच इज मेड अप ऑफ 48,514 बेस पेयर्स. इस पूरे डीएनए के दोनों एंड्स पे 12 दैट इज 12 बेसेस अनपेयर्ड होते हैं मगर कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. इन एंड्स को हम स्टिकी एंड्स बोलते हैं या कोहेसिव एंड्स बोलते हैं और इन्हीं को कॉस साइट्स बोला जाता है. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बनता है. ठीक, इस तरह से ये एक जीनोम प्रेजेंट होता है. दिस इज द कॉस साइट ऑन बोथ द एंड्स. कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से ये इस तरह से सर्कुलराइजेशन में हेल्प करता है और इस सर्कुलर फॉर्म में डीएनए फेज के हेड में एकोमोडेट हो जाता है. ठीक, प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज what is the significance of cos sites in bacteriophage lambda? These cos sites are important for packaging DNA into the phage heads. 1 मार्क का क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है. ठीक, अब इस डीएनए को हम वेक्टर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं क्योंकि ये पाया गया है कि इस डीएनए में बहुत बड़ा पोर्शन या कई सारे जीन्स लिटिक इन्फेक्शन में जरूरी नहीं होते हैं. तो इन एक्स्ट्रा जीन्स को हम निकाल के बाहर कर देते हैं एंड इसकी प्लेस में हम अपना फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट insert कर देते हैं. These vectors then carry our gene into the bacterial cells successfully. Now these phases can carry an insert or a foreign gene of the size 23 kb, not more than 23 kb. Okay. Now let's talk about the second bacteriophage, that is M13 bacteriophage. This is a filamentous bacteriophage which infects E. coli cells, but not all E. coli cells. It infects only those E. coli cells which contain a F plasmid. F plasmid की वजह से सरफेस के ऊपर कई प्रोट्रूशंस या पाइलस प्रेजेंट होते हैं जिनसे M13 अटैच कर सकता है. So therefore we can say that M13 infects only the F plus E. coli cells. जीनोम की अगर बात करें तो the genome is single stranded and circular. Lambda में you had seen that the genome was double stranded and linear. Here in M13 it is single stranded and circular and is quite small, made up of size 6,407 base pairs. Due to its small size, it is easy to insert a foreign gene into it without डिस्ट्रप्टिंग एनी ऑफ इट्स एसेंशियल जीन्स. हमें कोई भी जीन उसमें से निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम डायरेक्ट अपने फॉरेन जीन इसमें इंसर्ट कर सकते हैं. देयरफॉर इट सर्व्स एज अ वेरी गुड क्लोनिंग वेक्टर. नाउ लेट अस सी द life cycle of the M13 bacteriophage within the bacterial cell. This is the M13 bacteriophage and this is the pilus protruding out of the surface from the bacterial cell. M13 attaches to the F pilus, inserts its circular DNA into the bacterial cell. This circular DNA converts into the double-stranded DNA. It replicates and expresses itself to form new copies of the bacterial cell which are passed out of the cell for further infection or spread of the infection. This diagram depicts a detailed life cycle of M13 bacteriophage. ये यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ, वायरल डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट हुआ. बैक्टीरियल सेल के अंदर पहुंचने के बाद द फर्स्ट थिंग दैट अकर्स इज द कन्वर्जन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इनटू अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जिसको आरएफ बोला जाता है, दैट इज रेप्लिकेटिव फॉर्म. सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पहले रेप्लिकेटिव फॉर्म डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट होता है. यहाँ पे रेप्लिकेशन का एक स्पेशल मैकेनिज्म है जिसको साइक्लिक रेप्लिकेशन बोलते हैं.
इस रेप्लिकेटिव फॉर्म का मल्टीपल रेप्लिकेशन होता है जब तक कि इस सेल के अंदर इस RF के कम से कम 100 कॉपीज ना तैयार हो जाएं। जब इसकी 100 कॉपीज तैयार हो जाती हैं तब इस फ्रेगमेंट से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है, दैट इज प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, आउटर पैकेजिंग हेड तैयार होता है और फिर ये हेड अपने अंदर एक वायरल सिंगल स्ट्रैंडेड जीनोम को इनकॉर्पोरेट कर सकता है एंड फाइनली इट passes on to the next progeny. Now let us see how we can use this M13 bacteriophage in RDT. सिंगल स्ट्रैंडेड जीनोम को हमने बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट कराया। वायरल इंफॉर्मेशन की वजह से ये डबल स्ट्रैंडेड जीनोम में चेंज हो जाएगा जिसको हम रेप्लिकेटिव फॉर्म बोलते हैं। रेप्लिकेटिव फॉर्म का थीटा मॉडल जैसे कि नॉर्मल बैक्टीरियल सेल में होता है, थीटा मॉडल से इसका रेप्लिकेशन होता चला जाएगा, इसकी कॉपीज बनती चली जाएंगी। दो स्ट्रैंड्स होते हैं जिसमें से एक को हम माइनस स्ट्रैंड बोलेंगे और एक को हम प्लस स्ट्रैंड बोलेंगे। जो प्लस स्ट्रैंड है ये आगे रेप्लिकेशन करता चला जाता है। ठीक, सो यू कैन सी इन दिस डायग्राम, इस डायग्राम में देखिए आप कि यहाँ से ये रेप्लिकेशन शुरू हुआ और यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा। इस पॉइंट पे यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा और ये एक न्यू स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड तैयार हो जाता है। देन अगेन a second replication will start from this place and it will continue till completion. So this is known as the rolling circle structure, जिसको असिमेट्रिक रेप्लिकेशन भी कहा गया है। इस असिमेट्रिक रेप्लिकेशन की वजह से एक ही सेल के अंदर हमको लगभग 100 कॉपीज इस पर्टिकुलर M13 जीनोम की मिल सकती हैं। अब इसी M13 जीनोम में जब हम अपना जीन को, फॉरेन जीन को इंसर्ट कर देंगे तो हमको अपने फॉरेन जीन की भी लगभग 100 कॉपीज पर सेल मिल जाएंगी। तो क्लोनिंग पर्पस से जो हम इस M13 बैक्टीरियोफेज को यूज कर रहे थे वो पर्पस हमारा यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। Now this diagram shows the use of M13 in RDT. ये M13 RF DNA जो रेप्लिकेटिव फॉर्म DNA था वो हमने लिया, वहाँ से आइसोलेट जब हम करते हैं उसको हमने एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया और उसी सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट कट किया। सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों यूज करते हैं? ताकि दोनों में सिमिलर कोहेसिव एंड्स बने, स्टिकी एंड्स बने जो इजीली एक दूसरे के साथ यहाँ पे लाइगेट हो सकते हैं। हमारा ये रिकॉम्बिनेंट M13 RF DNA तैयार हो गया। इसको हमने ई कोलाई के अंदर सेंड कर दिया। ई कोलाई के अंदर ये तब तक रेप्लिकेट करता रहेगा जब तक इसकी लगभग 100 कॉपीज ना बन जाएं। 100 कॉपीज बनने के बाद ये अपना नेक्स्ट प्रोजेनी तैयार करेगा, जिससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है। वी आर ओनली concerned with increasing the number of copies of our gene of interest. This is cloning. यही cloning होती है, ठीक, जिसमें हम अपने gene of interest के number of copies बढ़ाना चाहते हैं। So this is how the M13 bacteriophage can be used as a vector in RDT. Now students, please note these notes down in your classwork notebook. Make fair notes, draw all these diagrams. Right? We are not going to repeat these lessons and hence I am taking so much pain to make these video lectures from home and deliver them at your home. Okay? So all of you should make proper notes of these sections of the chapter. Tomorrow we shall take up the next chapter. Thank you.